Hello student. Today it is our lecture number 30. Okay, and we are going with the lesson number 1, tracing the changes in the medieval period. Yesterday we discussed about the social changes. Okay, the social changes which took place during the medieval period. Today I will explain you about the political changes that took place during the medieval period. Okay, in class you have in last lecture you studied how the jatis were formed. Okay, what was the reason behind the formation of jatis? Okay, and during this medieval period so many jatis and the subcaste were formed, and it is because of nobility. Okay, and lots of group arised during this time. Okay, and one group which was very important, not in social life but also in the political life, it was Rajputs. Okay, now the word you have heard this word many times in many historical serials and many films like Rana Pratap, Maharana Pratap, a serial or film. So, who were the Rajput? What is the meaning of Rajput? Okay. So this word Rajput means word derived from the word Rajputra. Okay, Rajputra. These two words, Raja plus Putra. Okay, Rajputra means the son of ruler or king, means son of Raja. Okay, that means the Rajputra. From this Rajputra word, the word was used with the term that used in the history, that was called the Rajput. Okay, and between 8th to 14th centuries, it was used for the warrior. Okay, because it is you all know that the Rajput were a very big warrior. They were very brave. Okay, and what was the status of Rajput in our society? What was their status in our society? The Rajput claimed themselves Kshatriya caste. Okay, Kshatriya caste status. Kshatriya word, you have heard this word in your class 6th. Okay, in class 6 you have studied about the Varna system. Okay, in that in class 6 you have studied about the Varna system. In Varna system, our whole society was divided into 4 Varnas. 4 Varnas: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Okay, the main in this Varna system, Brahmin used to give education to the people. Okay, mainly to the son of kings or upper caste student. Okay, upper caste people. And Kshatriya, the term Kshatriya means was the people who were warrior and they used to protect the people. Okay, उनका मतलब कि मेन जो काम था राजपूतों का, क्षत्रियों का, वो लोगों की रक्षा करना था. ब्राह्मणों का काम था लोगों को शिक्षा देना, और जो राजपूत थे, जो क्षत्रिय थे, उनका काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनको रक्षा देना. तो यहीं से इस क्षत्रिय जो उस समय के बहाने, आपने आजकल जो सीरियल आ रहा है रामायण महाभारत, इसमें आपने देखा कि जो राम थे या कौरव पांडव थे, ये भी क्षत्रिय थे. ओके, इनका काम, क्योंकि राजा का काम क्या था उस समय? राजा का काम था लोगों की रक्षा करना. ओके, तो ये क्षत्रिय जो थे वो उस समय बहुत पावरफुल माने जाते थे. सो वो क्या करते थे? लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. तो यहीं से ये जो वॉरियर ग्रुप निकल के आया, जो कि पहले
ट्राइब्स हुआ करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे पहले, जो बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स थे, और इन ट्राइबल ग्रुप ने धीरे धीरे अपनी पावर गेन करनी स्टार्ट कर दी। ओके, एंड व्हेन दे गेन अ लॉट ऑफ पावर, जब उन्होंने बहुत सारा पावर गेन कर लिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना किंगडम, अपना छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़, अपने लिए वर्ड यूज़ किया, राजपूत। ओके, देन दे वर कॉल। और फिर धीरे धीरे हमारे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इनको क्षत्रिय मानना स्टार्ट कर दिया, उनको क्षत्रिय की उपाधि दे दी। तो इस तरह से ये जो राजपूत थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, क्षत्रिय मानते थे। ओके, क्षत्रिय कास्ट का के स्टेटस में अपने आप को रखते थे, उस क्लास में अपने आप को रखते थे। और ये जो राजपूत वर्ड है, ओके, दिस टर्म राजपूत, द टर्म राजपूत मीन्स ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर द, ये वो शब्द जो है, ये वर्ड जो है, ये टर्म जो है, वो रूलर्स के लिए, चिफ्टेंस के लिए, सोल्जर्स के लिए और कमांडर्स के लिए, इन सब के लिए ये टर्म यूज़ किया गया। ओके, रूलर्स थे, राजास थे या राजा थे, किंग्स थे, और चिफ्टेंस जो सरदार हुआ करते थे, कबीलों के सरदार थे, और उसमें ट्राइब्स के जो सरदार हुआ करते थे। सोल्जर्स के लिए भी यही वर्ड राजपूत, जो सोल्जर्स जो सैनिक है, जो लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, लोगों की रक्षा कर रहा है, तो उसके लिए भी राजपूत वर्ड यूज़ किया गया। एंड कमांडर जो सेनापति हुआ करते थे, उनके लिए भी राजपूत वर्ड यूज़ किया गया। नाउ व्हाई दे वर फेमस, why they are very famous in our हिस्ट्री में वो क्यों इतने फेमस है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे। ओके, एंड द मेन रीज़न वॉज दैट दे वर वेरी ब्रेव। ओके, वो बहुत ही ब्रेव, दे आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी एंड देयर लॉयल्टी। अब आगे जाके आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मेनली इन द ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, द राजपूत्स वर गिवन बिग जागीर्स, बड़े बड़े मनसब उनको दिए गए थे, बड़े बड़े जागीर्स दी गई थी, क्योंकि ये जो राजपूत थे ये मुग़लों के बहुत वफ़ादार माने जाते थे, और मुग़लों को भी पता था कि ये, अगर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनी पावर मेनली नॉर्थ इंडिया में, तो राजपूतों को अपने साथ मिलाना होगा। सो दे took the help of these Rajput to stretch their kingdom. ओके, मेनली द मुगल्स। ओके, अभी तो हमने आपसे बात की किसके बारे में, राजपूतों के बारे में। राजपूतों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो मेडिवल पीरियड में ग्रो कर रहे थे। ओके, दे वर ऑल्सो डेवलपिंग, चाहे वो नॉर्थ इंडिया था, चाहे वो साउथ इंडिया था। साउथ इंडिया में के बारे में आपने चोलास के बारे में, चेरास के बारे में, चालुक्योस के बारे में आपने लास्ट क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, तो जो दूसरे ग्रुप जो इस समय राइज हुए, दे वर प्रतिहार्स, चंदेलास, चौहान्स, परमार्स, सोलंकीज, जाट, अहोम्स एक्सेट्रा। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे जाति थी या ग्रुप्स थे जो इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। ओके, and during this time, after the 8th century, आफ्टर 8th सेंचुरी के बाद क्या था, जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, तो हमारे जो उस समय जो बहुत बड़ा किंगडम था हर्षवर्धन का, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बिखरने लगा। ओके, टूटने लगा। तो ये धीरे धीरे जो अलग अलग वंश के राजपूत थे, इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, मीन्स अपने किंगडम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, दे स्टार्टेड टू अटैक ऑन ईच अदर। ये सब एक दूसरे पे क्या करते थे, अटैक करते थे अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ इट दे बिकम, अब ये धीरे धीरे इनकी पावर कमज़ोर होने लगी। ये एक दूसरे के ऊपर ही अटैक किया करते थे, तो इन जो विदेशी लोग थे उनको भारत में आने का मौका मिल गया। तो जैसे ये प्रतिहार्स थे, ये प्रतिहार जो थे, दे यूज़ टू रूल ओवर द राजस्थान एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया। ओके, एंड द सोलंकीज, जो सोलंकीज थे, दे रूल्ड इन द रीजन ऑफ द काठियावाड़। गुजरात का जो काठियावाड़ का इलाका है, वहाँ पर सोलंकीज का रूल था। और चंदेलास,
जो चंदेलास थे, द चंदेलास रूल्ड अराउंड द बुंदेलखंड। आज का जो बुंदेलखंड का इलाका है यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को मिलाकर ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, इस बुंदेलखंड के इलाके में चंदेलों का राज था। ओके, एंड द चौहान्स रूल ओवर द सेंट्रल राजस्थान। यू हैव हर्ड द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, उनके ऊपर बनी हुई फिल्म भी आपने देखी होगी या सीरियल्स भी देखे होंगे। तो ये चौहान्स जो थे वो सेंट्रल राजस्थान में रूल करते थे। तो ये जो हमारे बहुत सारे जो राजपूत, अलग अलग वंश के राजपूत थे, आपस में लड़ा करते थे। दे यूज्ड टू फाइट विथ ईच अदर टू स्ट्रेच देयर बाउंड्री ऑफ द किंगडम। Okay, and because of it, the invaders from Middle East, they got the chance to attack on India. In next segment, we will talk about these invaders who attacked on India. Okay, like the Turks, Mughals, Arabs, and the Sultanate, the kings of Sultanate period. Okay. Thank you. If you have any queries, you will ask me on WhatsApp number. Okay. Thank you.